أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اور صبر کر اس بات پر جو کہتے آئے ہیں، اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کو کہ جو بڑی طاقت والا تھا اور وہ اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا تھا. إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ. اور ہم نے تابع کر دیا تھا اس کے پہاڑوں کو جو شام کے وقت اور صبح کے وقت یعنی صبح شام تسبیح بیان کیا کرتے تھے. وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا. اور پرندے اس کے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے. كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ. وہ تمام کے تمام اس کے تابع تھے. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. اور ہم نے اس کے ملک کو مضبوط کر دیا، اس کی بادشاہت کو مضبوط کر دیا، اور اس کو ہم نے حکمت عطا فرمائی اور مقدمات کے فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھایا. محترم حضرات، درس قرآن کا سلسلہ الحمدللہ اس مقام تک پہنچا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کو پڑھتے تھے اور اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے تھے تو آس پاس پرندے جمع ہو جایا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ پہاڑ بھی ذکر کرنے لگ جایا کرتے تھے. اور نباتات اور جمادات بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ دنیا کی اور کائنات کی تمام چیزیں ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کرتی ہیں. پہاڑ بھی اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں، پتھر بھی اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں. ہم مکہ شریف میں تھے تو ایک بڑے بزرگ نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ دیکھیں گے کہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد 700 پہاڑ ہیں، اور اب ذرا غور کر کے اس کی طرف نظر کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام کے تمام پہاڑ کچھ نہ کچھ بیت اللہ شریف کی طرف یوں جھکے ہوئے معلوم ہوں. گویا بیت اللہ شریف کی طرف یہ پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں، یہ تمہیں معلوم ہو. اور ہم نے اس بات پر غور کیا کئی مرتبہ جب جانا ہوا طائف کی طرف اور ادھر ادھر جانا ہوا ووہن کی طرف وغیرہ وغیرہ، تو اکثر ہم نظر ڈالتے تھے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ تمام کے تمام پہاڑ کعبۃ اللہ کی طرف یوں جھکے ہوئے ہیں، گویا کعبۃ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. تو دنیا کی تمام چیز اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، جین ہو، چاہے حیوانات ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے جمادات ہو، کوئی بھی چیز ہو، دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
जब खुतबा देते थे शुरू में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुतून हन्नाना, एक खजूर के दरख्त का तना था, उस पर हाथ रख के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेका लेकर खुतबा दिया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर बना दिया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े तो वो सुकून रोने लगा। हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर हाथ फेरा, गोया तसल्ली और शफकत का हाथ फेरा, तो उसको रोना बंद हो गया। देखो आका ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर, हाथ लगाया, वो खामोश हो गया। इससे मालूम हुआ कि ये नबातात, जमादात, ये सब कुछ जिंदा होते हैं। और आज का साइंस भी ये कहता है कि नबातात के अंदर, ये दरख्तों के अंदर, ये पत्तों के अंदर, ये बेल वगैरह होते हैं, सब के अंदर जान होती है, उसके अंदर जान होती है। अल्लाह ताला ने तो 1400 साल पहले फरमा दिया, तुसब्बिहु लहु सबउ समावाति वल अर्द वमन फीहिन्ना, कि जमीन और आसमान और उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, सब की सब तस्बीह बयान करते हैं अल्लाह ताला की। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हमने देखा, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि हमने देखा आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी जारी हुआ, वो नहर बन गया। और जब हम खाने के लिए बैठते थे तो हम देखते थे बहुत सी मर्तबा कि उसके अंदर से जिक्र और अस्कार और तस्बीह की आवाज आती है, तस्बीह की आवाज आती है। और अगर जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाया करते थे कि आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वो फरमाया करते थे, मैं उन पत्थरों को आज भी जानता हूं जो पत्थर मेरी नबूवत से पहले, मेरे नबी होने से पहले मुझको सलाम किया करते थे। तो पत्थर भी बोलते थे, पत्थर भी सलाम करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में तशरीफ ले गए, एक झोपड़ी देखी, उसके बाद एक हिरनी बनी हुई है। तो हिरनी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आई रसूलल्लाह, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, जरा मुझे इजाजत दिलवा दीजिए, मैं जाऊं और दूध पिलाकर आ जाऊं मेरे बच्चों को। हिरनी गई, फिर आ भी गई, दूध पिलाकर अपने बच्चों को दूध पिलाकर आ गई। इतने में वो जो शिकार किया था जिसने, उस हिरनी का वो सहाबी भी आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि इस हिरनी को तुम आजाद कर दो। ये हिरनी को आजाद किया, वो चलने लगी, तो जाते जाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुड़ कर देख रही थी, गोया वो ज़बान हाल से शुक्रिया अदा कर रही थी कि तेरा आपका बहुत बड़ा एहसान कि आपने मुझे आजाद फरमा दिया। इससे मालूम हुआ कि जानवर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, तुसब्बिहु लहु सबउ समावाति वल अर्द वमन फीहिन्ना, जमीन आसमान, सातों जमीन सातों आसमान और उसके अंदर जितनी चीजें हैं, सब की सब अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, तौहीद बयान करते हैं, लेकिन तुम उसका शऊर नहीं रखते। तो फरमाया सब की सब जितनी भी चीजें ये अल्लाह का जिक्र अदा करती है, कुछ ज़बान हाल से, कुछ ज़बान काल से। ये इंसान का जिस्म खामोश भी हो तो अल्लाह का जिक्र करता रहता है, अल्लाह का जिक्र करता रहता है ज़बान हाल से। इंसान को अल्लाह ने कैसा बनाया है, अगर आदमी इसको सोचे और आदमी इसमें गौर करे तो उसमें ही अल्लाह ताला उसको नजर आ जाए अपनी जान में। सनूरीही आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन अन्नहुल हक। क्या फरमाया कि मैं ये दुनिया के अंदर और तुम्हारी जानों के अंदर, तुम्हारे जिस्मों के अंदर ऐसी ऐसी निशानियां तुम्हें दिखा दूंगा कि आप बोल पड़ोगे कि अल्लाह हक है, आप बोल पड़ोगे कि अल्लाह हक है। तो ये इंसान की बनावट देखें, अगर इंसान गौर करे तो अल्लाह को इंसान के अंदर ही अल्लाह ताला, इंसान को अल्लाह ताला इंसान के अंदर, उसके जिस्म ही के अंदर मिल जाएगा। औरत होती है, बीवी होती है, उसके अंदर कंधा होता है, शौहर उसे सोहबत करता है तो उससे जो पानी निकलता है, उस पानी के अंदर छोटे छोटे जरसूमे होते हैं, वो 1 अरब होते हैं, 1 अरब जरसूमे। अब ये 1 अरब जरसूमे दौड़ना शुरू करते हैं, वहां औरत का अंडा जो है, छोटा सा अंडा,
जो माइक्रोब से और फुलजेल से देखा जा सकता है, छोटी सी दुर्गंध से देखा जा सकता है। ऐसा अंडा खुला हुआ है और वहां जा रहे हैं, जरसों में दौड़े हुए जा रहे हैं, और कितने जरसों में है? इंसान का जो पानी शर्मगाह से निकलता है सोबत के वक्त, उसके अंदर कितना होता है, कितने होते हैं जरसों में? कीड़े छोटे छोटे, एक कदम, वो सब के सब दौड़ते हैं उस अंडे की तरफ, बीवी के अंडे की तरफ, औरत के अंडे की तरफ दौड़ते हैं। वो अंडा मुंह खोला हुआ है, जो जल्दी दौड़कर अपनी ताकत से आगे बढ़ जाता है और उस अंडे में दाखिल हो जाता है, वो अंडा बंद हो जाता है। और 99 करोड़ 99 लाख 99,999 रह जाते हैं। ये दूसरे जितने इंसान थे वो सब के सब रह गए और एक ही इंसान अंदर गए, इसमें से हम पैदा हुए। हमको एक को पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने कितनों की कुर्बानी दी? कितनों की कुर्बानी दी? 99 करोड़ 99 लाख 99,999 हमारे पीछे खत्म हो गए और हम अकेले पैदा हुए। ये अल्लाह की ताकत है। और कितने से जलसुमा नमक होता है, नमक का जो कण होता है, उस कण के 2 टुकड़े करें, इतना ही जलसुमा होता है जो दिखाई भी नहीं देता। इतने से इंसान को पैदा किया। 2 पानी को मिलाया, अल्लाह ने इंसान को पैदा कर दिया। है दुनिया की कोई ताकत कि पानी से कोई तस्वीर बनाकर दिखा दे, कि पानी से कोई मुजस्समा बनाकर दिखा दे? है किसी की ताकत? कोई नहीं। पानी के अंदर उंगली भी डालो तो पानी हट जाता है, पानी के अंदर पत्थर डालो पानी हट जाता है, उसका कोई जिस्म नहीं बनता। ये अल्लाह है, ये अल्लाह है। ये इंसान का जिस्म है जो अल्लाह का जिक्र बयान करता है, अल्लाह की शान बयान करता है कि अल्लाह की कुदरत बहुत ज्यादा है। ये इंसान की आंख ले लीजिए, इंसान का हाथ ले लीजिए, इंसान का हाथ सबसे पहले पैदा होता है, वो धड़कना शुरू हो जाता है, रूह बाद में पड़ती है, और इंसान के जिस्म से इंसान का जो दिल होता है वो 4 महीने ज्यादा उम्र इसकी होती है, 4 महीने बड़ा होता है। और ये इंसान का दिल चलता है 80 साल तक, 90 साल तक, कभी उसकी रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, कभी उसकी ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती। हम एक बाइक लाते हैं, 2-3 महीने के बाद उसको गैरेज में देना पड़ता है। कोई भी चीज, घड़ी लाते हैं, चंद सालों के बाद उसको घड़ी साज के पास पहुंचाना पड़ता है। क्या बात है? क्यों? इसलिए इंसान ने बनाई है। और दिल किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। कितना ताकतवर है। 80 साल तक कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक सेहतमंद आदमी 80 साल तक वो धड़कता रहता है, 90 साल तक धड़कता रहता है, और 100 साल तक धड़कता रहता है, 110 साल तक धड़कता रहता है, और इंसान का जिस्म चलता रहता है, और इंसान को वो खून सप्लाई करता रहता है, खून सप्लाई करता रहता है। एक मोटर हमारी होती है, मोटर के लिए मोटर से पानी ऊपर चलाना होता है तो बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, बड़ी मोटर रखनी पड़ती है। ये इंसान के जिस्म यहां से वहां, एक मंजिले से दूसरे मंजिले पर पानी चढ़ाओ तो मोटर लगानी पड़ती है। ये इंसान के जिस्म के अंदर नसों की जो पाइपें हैं, जो रगे हैं, वो कितने किलोमीटर के? 72,000 किलोमीटर की रगे है। 72,000 किलोमीटर रगे हैं। ये 72,000 किलोमीटर की रगों के अंदर खून को बहाता है, खून को चलाता है। ये कौन चला रहा है? ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ हाथ है, बनाया हुआ दिल है, उससे चलता है। इंसान की आंख देखे, इंसान की आंख अगर उस पर इंसान गौर करे, इस पर दुनिया वाले गौर करे, तो उसमें अल्लाह उसको नजर आएंगे कि मेरे अल्लाह ने कैसे इसको बनाया है, कितनी ताकतवर इसको बनाया है। कि एक आंख में 13,000 बल्ब, दूसरी आंख में 13,000 बल्ब, 13,000 कैमरे। इन कैमरों से हम देखते हैं, ये मेरा कैमरा है, ये आप लोगों को देख रहा है, और एक सेकंड के अंदर 60 फोटो कैप्चर कर लेता है। एक सेकंड के अंदर थोड़ी सी देर में कई फोटो खींच लेता है। कई 10,000 से ज्यादा मेगापिक्सल कैमरा इसमें अल्लाह ने लगाया है। हमारे कैमरे कितने होते हैं? 64 मेगापिक्सल वगैरह वगैरह, लेकिन ये अल्लाह ताला ने 10,000 से भी ज्यादा मेगापिक्सल कैमरे लगाए हैं, और सब मुफ्त में, सब मुफ्त में। कुछ कैमरे ऐसे हैं कि ये जो मैं आपको देख रहा हूं, आप कौन हैं जो पहचानते हैं आपको, आप कितने दूर बैठे हैं वो अलग कैमरे पहचानते हैं, आपकी साइज क्या है, मोटे हैं या दुबले हैं वो अलग कैमरे पहचानते हैं, अलग अलग उसको देखते हैं। ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई है, और अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये कुदरत के करिश्मे रखे हैं, कुदरत के करिश्मे रखे हैं। और इंसान की आंख है और ऊपर पलकें रखी है। ये पलकें कितना ज्यादा काम करती है? ये वाइपर का काम करती है। और जितनी भी गर्द गुबार होती है, जितने भी जंतु होते हैं,
اور जतने भी जरासीम होते हैं सबको साफ करते रहते हैं, सबको साफ कर, और उसमें से वो एक ऐसा केमिकल छोड़ती है जिसकी वजह से जौन सा भी जरासीम अंदर आ जाए, तो जौन सा भी कीड़ा मकोड़ा आ जाए वो अंदर मर जाता है, जिंदा नहीं रहता, मर जाता है। अंदर कोई भी जलकुमा चला जाए, उसमें कोई भी कीड़ा चला जाए, फौरन मर जाता है। उसमें अल्लाह ताला ने ऐसा केमिकल रखा हुआ है, क्योंकि ये नाजुक जगह है। अगर कोई चीज जिंदा रहे, कान में चीज जिंदा रहती है, कान में बहुत सी मरतबा बहुत अंदर चली जाए तो मर जाती है, लेकिन अंदर तो जिंदा रहती है। आंख में जाती ही मर जाती है, क्योंकि आंख बड़ी कमजोर जगह है, आंख बड़ी नाजुक जगह है। अल्लाह ने बनाया भी ऐसा है, अल्लाह ने बनाया भी ऐसा है। और एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ तो ऊपर का जो ये पलके थी उसकी खत्म हो गई। अब डॉक्टर के पास गया, पूरी साइंस मिलकर, पूरे डॉक्टर मिलकर, पूरी मेडिकल मिलकर अगर एक पलक बनाना चाहे बना नहीं सकता, एक पलक बनाना चाहे बना नहीं सकता। डॉक्टर ने कहा कि अब तो तुम्हें हर 10 मिनट के अंदर आंख साफ करनी पड़ेगी, क्योंकि हर 10 मिनट में दर्द बाल लगेगा और आपको बुझा बुझा नजर आएगा, आपको बुझा बुझा नजर आएगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप दवा डाला करें और हर 10-15 मिनट के बाद अपने मुंह को साफ किया करें, तब आपको सही साफ नजर आएगा। अब देखिए कि एक पलक चली गई तो उसका क्या हाल हुआ, पूरी जिंदगी वो उसमें पड़ा रहेगा और पूरी जिंदगी वो अपनी आंख को साफ करता रहेगा। अल्लाह ताला ने हमें आंख दी है, पलकें दी है, कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा अल्लाह ताला का करम, कितना करम है हमारे साथ, बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ी मेहरबानियां है। एक आदमी का बाल किसी तरह यहां खत्म हो गया। इंसान खाता है, नहीं खाता है, इंसान जब खाना खाता है तो क्या होता है, अंदर खाना जाने के बाद एक नली खुलती है, फिर अंदर खाना चलाता है, वो नली बंद हो जाती है। ये अब इंसान यूं झुकेगा तो कभी खाना बाहर नहीं आएगा। मैं अभी झुकूं, मेरा खाना बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसा बाल रखा है, खाना जाने के बाद वो बाल बंद हो जाता है। एक आदमी का बाल खत्म हो गया। शेख अली दामद बरकातुहू कहते हैं, मेरा दोस्त है, मैं उसको जानता हूं, मैं उसके पास मुलाकात के लिए नहीं गया था, तो वो अफसोस कर रहा था कि हजरत कैसी बीमारी मुझे लग गई, कैसी बीमारी लग गई है, मेरा खाना अंदर नहीं टिकता, मैं सो नहीं सकता, हजरत खाने के बाद मुझे ऐसे ही ऐसे लेटना पड़ता है, मैं रात को सो नहीं सकता, रात को अगर मुझे सोना है तो कुछ तकिए रखकर मैं अपनी गर्दन को ऊंची करके सोता हूं, मैं चटापाट नहीं सो सकता, मैं बिल्कुल चित नहीं लेट सकता, वरना अगर मैं लेटूं तो मेरे अंदर से बहुत सारी चीजें बाहर आ जाती है। देखो अल्लाह ताला की कितनी मेहरबानी हमारे साथ, अल्लाह ताला का कितना करम हमारे साथ कि अल्लाह ताला ने हमारे तंदुरुस्त बनाया है, ताकतवर बनाया है, सेहतमंद बनाया है। तो अल्लाह ताला का हमें बहुत ही बड़ा एहसान मानना चाहिए, अल्लाह का करम मानना चाहिए। अलगद में अर्ज कर रहा था कि इंसान का जिस्म अगर जिक्र भी न करे तो बगैर जिक्र के भी अल्लाह ताला की वो शान बयान करता है। ये पूरी दुनिया अल्लाह की शान बयान करती है, पूरी दुनिया अल्लाह की शान बयान करती है कि अल्लाह क्या है, अल्लाह का जिक्र करती है कि अल्लाह क्या है, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह की पाकी बयान करती है। अलगद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर पढ़ा करते थे तो सारे के सारे नबातात और जमादात उनके साथ जिक्र करने लगते थे और परिंदे अतराफ में बैठ जाते थे और जिक्र करते थे, और ऐसा जिक्र करते थे कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अंदर भी चुस्ती पैदा हो जाती थी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम में और ज्यादा ज़ौक़ पैदा होता था और चुस्ती से अल्लाह का जिक्र किया करते थे। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि खानकाहों में जो जिक्र इज्तिमाई होता है, लोग जमा होकर इज्तिमाई जिक्र करते हैं, जैसे मुफ्ती महमूद साहब तशरीफ लाते हैं हर 2 माह में हमारे गोधरा में, तो ये जो खानकाई निजाम होता है तो जल्दी उठा दिए थे, तहज्जुद के वक्त उठा दिया जाता है और फिर सब जमा होकर जिक्र करते हैं अल्लाह का जिक्र। ये बुजुर्गान दीन से साबित है। और इज्तिमाई जिक्र की वजह से हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब एक साथ मिलकर सब जिक्र करेंगे तो एक दूसरे के अंदर ज़ौक़ पैदा होगा, शौक पैदा होगा, बलबला पैदा होगा, एक जज्बा पैदा होगा और ज्यादा से ज्यादा जिक्र करने का आदमी के अंदर दाहिया पैदा होगा। इसलिए जिक्र इज्तिमाई जो होता है, सबको मिलकर जिक्र भी करना चाहिए, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए, कोई ऐसा वक्त मुतय्यन करना चाहिए कि सब मिलकर एक साथ मिलकर अल्लाह का जिक्र करें।
اور یہ بھی فرمایا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے کہ ایک دوسرے کے ذکر کے اثرات ایک دوسرے پر پڑتے ہیں. جب ایک ساتھ مل کر ذکر کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے ذکر کے اثرات ایک دوسرے پر پڑتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. البتہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کل قیامت کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ عرش کے سامنے کھڑے کریں گے اور کہیں گے داؤد اب میرا ذکر بیان کر، داؤد زبور پر، داؤد میری تسبیح بیان کر. حضرت داؤد کہیں گے اب وہ بات کہاں رہی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تجھے وہی آواز دیتا ہوں، اب تو اللہ کا ذکر کر. اب تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے محشر میں بھی اللہ کے عرش کے سامنے بھی اللہ زبور پڑھیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے. روایت میں آتا ہے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کے اوپر زبور کو اتنا آسان کر دیا تھا، اتنا آسان کر دیا تھا کہ خادم کو کہتے تھے کہ گھوڑے پر زین لگا دو، گھوڑے پر زین وغیرہ لگا دو. وہ زین وغیرہ بھی تیار کرتا تھا، گھوڑے پر لگاتا تھا اور سب تیار کرتا تھا، تیار کرنے لگتا تھا اور جب تیار ہو جاتا تھا اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام اتنے وقت میں پوری زبور پڑھ لیتے، پوری زبور پڑھ لیتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ زمانے کو لپیٹ دیتے تھے. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج میں، پھر جب تشریف لے کر واپس آئے مکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا وہ ابھی گرم تھا. آدمی بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد پھر اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے تو وہ گرم ہوتا ہے کیونکہ انسان کا جسم گرم ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ سیر کر کے آئے کہ بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمانوں پر گئے، ساتوں آسمان پار کیے اور اللہ کے سامنے حاضر ہوئے اور جنت و جہنم کی سیر کی. یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر کتنی دیر لگی تھی؟ تھوڑی سی دیر لگی تھی. اتنی دیر لگی تھی کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور جو دروازہ بند کیا تھا، دروازہ بند کرنے کی وجہ سے جو کنڈی ہلتی ہے وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی. زمانے کو اللہ تعالیٰ لپیٹ لیتے ہیں اپنے بڑے اولیاء کے لیے، اپنے انبیاء کے لیے، بڑے بزرگوں کے لیے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. صبح فجر کے وقت، صبح سویرے تہجد کے وقت وہ غسل کرنے کے لیے نہر پر پہنچ گئے. کپڑے ایک طرف رکھے اور نہر میں انہوں نے ڈبکی لگائی اب وہ دوسری دنیا میں چلے گئے. نہ معلوم کون سی دنیا میں چلے گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں گیا، ایک دوسری مخلوق ہے، وہاں میں ذکر و اذکار کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، پانی پی رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، یہاں تک کہ 2 رمضان کے میں نے روزے بھی رکھے، 2 رمضان کے روزے بھی رکھے. اور پھر اچانک انہوں نے اپنا سر باہر نکالا تو وہی کا وہی وقت تھا، تھوڑی دیر نہیں تھی ان کو جتنا گوتا لگانے میں دیر لگتی اتنی دیر لگی تھی باہر کی دنیا میں. اندر کی دنیا میں تو 2 سال ہو گئے. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ بھی کر دیتا ہے. حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو کہتے تھے چلو جمنا کے کنارے آج تو میں قرآن سناؤں گا. عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے، مغرب ہوتے ہوتے وہ پورا قرآن سنا دیتے تھے. اب زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے ہوتے، مغرب اور عصر اور مغرب کے درمیان زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے ہوتے. اب 2 گھنٹے ہم لے لو کہ 2 گھنٹوں میں انہوں نے پورا قرآن سنایا تو سمجھو 4 منٹ میں ایک قرآن سنایا، 4 منٹ میں ایک سپارہ سنایا. تو 2 گھنٹے میں پورا قرآن سنا دیتے تھے. 4 منٹ میں ایک سپارہ، 2 گھنٹے میں پورا قرآن سنا دیتے تھے. تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت میں برکت ہوتی ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں بہت سارے کام کر جاتے ہیں. یہ وقت کو لپیٹ دینا، وقت کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا کرتے ہیں. بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو مضبوط حکومت دی اور ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا. اور پھر فیصلہ کرنے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقدمات کو حل کرنے کی طاقت بھی دی اور ان کے اندر ہم نے حکمت بھی رکھی. اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام حکومت کر رہے ہیں. بنی اسرائیل کے زمان بنی اسرائیل ادھر ادھر گھوم رہے تھے، مار کھا رہے، پیر رہے تھے.
یہ پہلا زمانہ ہے اور پہلا وقت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو اطمینان کا سانس لینا نصیب ہوا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت پھیلتی چلی گئی. حضرت داؤد علیہ السلام جہاں چلے جاتے تھے وہاں اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب کرتے تھے اور فتح اور کامرانی سے نوازتے تھے، یہاں تک کہ شام کا علاقہ پورا شام فتح ہو گیا، پورا فلسطین فتح ہو گیا، پورا عراق فتح ہو گیا، اور اردن کی ایک لمبی پٹی، اردن کا جو علاقہ ہے وہ سب کا سب فتح ہو گیا. اور اس کے بعد بہت سے دریائے فرات سے لے کر اور دور تک حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت ہو گئی، اور بڑی مضبوط حکومت تھی، یہاں تک کہ جنات، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جنات ان کے تابع ہوا کرتے تھے، جنات بھی ان کا حکم مانتے تھے. اور بنی اسرائیل جو یہ کام کرتے تھے، بنی اسرائیل جو یہ نافرمانیاں کرتے تھے، اپنے انبیاء کو مارتے تھے، ان کی مجال نہیں تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھیں، کیونکہ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر داؤد علیہ السلام، اگر ہم نے کوئی نافرمانی کی تو داؤد علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آئے گی، پھر بہت ساری چیزیں ان کے قبضہ قدرت میں ہیں، ان کے ذریعے ہمیں وہ سزا بھی دے سکتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام سے بنی اسرائیل گھبراتے بھی بہت تھے. یہ پہلے پیغمبر ہے جس کی وہ اطاعت کرتے تھے، جس کی وہ عظمت کو سمجھتے تھے، اور جن کی وہ اہمیت کو سمجھتے تھے، اور جن کی طاقت کے سامنے وہ ڈر کر اور گھبرا کر پست رہتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے. انشاءاللہ آگے کیا ہوا، درس قرآن کا سلسلہ انشاءاللہ آئیں گے کل سنایا جائے گا.